Hi, I am Syed Rashid from Ahlebaid High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel named as Ahlebaid High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our class 9th physics chemistry chapter number 7 atoms, molecules and chemical reaction. Now in today's session we will going to learn about the chemical displacement reaction with us, and in our previous session we have started and we defined what is chemical reaction, as well as we have come across with few types of chemical reactions like chemical combination, exothermic reaction, endothermic reaction and chemical displacement, not displacement, chemical displacement reaction we will going to start just now. That is chemical decomposition reaction we have learned in our previous session, and decomposition also we have three types of reaction that already I explained, as well as I kept the matter on your screen too. Now in today's session let us begin with chemical displacement reaction. जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हमारे प्रीवियस यानी कि नशिस में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में शुरू करे थे. आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसी को लेकर के. अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो अब थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद समझा दूंगा. In displacement reaction, one element displaces another element from its compound and take place therein. Displacement of hydrogen from acid by metal. Generally metals which are more active than hydrogen displace it from an acid. Let us observe the reaction in the following activity. अब देखिए केमिकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि ये जो कंप्लीट केमिकल रिएक्शन होता है ना, यानी कि एक जो कंपाउंड रहेगा उसके अंदर और एक एलिमेंट रहेगा. जो एलिमेंट होता है वो कंपाउंड के अंदर की प्लेस ले लेगा और कंपाउंड को स्प्लिट करके अलग कर देता उन्हें. क्या बोल ले रहेंगे सर के ऊपर से जा रहा. इट इज़ नॉट अ थिंग दैट यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड. यू कैन अंडरस्टैंड बट यू नीड टू लिसन एंड कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दी थिंग विच आई एम टेलिंग यू. When I will give you the example, then easily you can understand. Now we will going to do one activity with us, like activity number 8. In activity number 8, what we are doing? We are taking hydrochloric acid, okay, HYDRO, CHLORIC, plus we are taking like zinc, ZINC. Here it is metal and it is like acid. So what happened? We are doing, first you need to write like aim. Aim is nothing but to check the chemical displacement reaction. Apparatus. In apparatus we need like hydrochloric acid, zinc, okay, we need some conical flask, okay, after that we need like test tube, TEST test tube. After test tube we need like some matchstick. This many thing we need to need for the experiment to do. And this same experiment you have in your 10th class also. 10th class में भी सेम एक्सपेरिमेंट है, लेकिन उधर थोड़ा आपको कुछ अलग बताना चाहते ये एक्सपेरिमेंट को लेके, मगर यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का है. तो देखिए अपैरेटर्स तो ये हो गया आपका, एम ये हो गया. प्रोसीजर में क्या है? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जिंक डस्ट इन अ कॉनिकल फ्लास्क, ऐड डाइल्यूट HCl एसिड स्लोली. अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, आप कॉनिकल फ्लास्क ले लोगे, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ. देखिए दिख रहा. तो ये जो कॉनिकल फ्लास्क है इसके अंदर पहले आपने जिंक के डस्ट रखे थे, फिर आफ्टर दैट आपने कुछ थोड़ा सा डाइल्यूट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूशन में मिलाया था. अब देखिए स्क्रीन में एक बलून ले लिया आप. बलून ले लेके उसको क्या करें, बिल्कुल टाइट कर दिए माउथ ऑफ द कॉनिकल फ्लास्क के मुंह से. करने के बाद क्या हुआ, क्लोज द ऑब्जर्वेशन चेंज इन दी कॉनिकल फ्लास्क एंड बटन व्हाट डू यू नोटिस. अब आप क्या नोटिस करोगे, तो ये जो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर से जो एयर होती है यानी कि हाइड्रोजन गैस होती है, वो बैलून के अंदर आके बैलून के साइज को बिग यानी कि एक्सपैंड कर देगी. तो एक्चुअल रिएक्शन होता क्या है, देखिए रिएक्शन यहाँ पे होता क्या है. देखिए एक हमारे पास है HCl, तो हम इसको 2HCl लिखेंगे प्लस ZN. ZN इज नथिंग बट जिंक है ये. तो ये एक कंपाउंड हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया. अब इन्हें मिलके क्या होता है, ZnCl2 प्लस H2. तो यहाँ पे आप देख सकते कि ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये डिस्प्लेस कर गया, अपनी जगह को डिस्प्लेस यानी अपनी प्लेस चेंज कर गया. चेंज करके क्या हो गया, अलग हो गया, स्प्लिट हो गया, अलग ही हो गया. वेरस जो क्लोरीन था हमारे पास, वो क्लोरीन किसकी प्लेस ले लिया, जाके जिंक के पास जाके सेटल डाउन हो गया. तो इस टाइप के रिएक्शन को हम केमिकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. अभी आप केमिकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का
एक सेकंड के लिए डेफिनेशन आप यहाँ पे देख लीजिए, मेरे स्क्रीन पे जा रहा होगा। तो ये जो डेफिनेशन है ना केमिकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, इसको आपको अच्छे से याद करना है। याद करने के साथ साथ आप लिख के रख लीजिए, आप चाहे तो एक्टिविटी 8 बोल के भी ऑन से बना के आप आगे कर सकते। सो ये हो गया हमारा केमिकल डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी आर मूविंग टू दी केमिकल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वी हैव वन मोर टाइप ऑफ रिएक्शन विथ अस लाइक केमिकल डबल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे क्या हो सकता है ऑल द स्टूडेंट, DOUBLE DISPLACEMENT, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो सकता? हियर वी हैव वन कंपाउंड एंड वन एलिमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप देख सकते हैं कंपाउंड है और एक एलिमेंट है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, दोनों भी कंपाउंड रहते। लाइक एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, HCl प्लस NaOH, ये दोनों भी क्या हो गए, कंपाउंड्स हो गए ये लोग, ठीक है, बोथ आर कंपाउंड। तो ये बनता क्या, NaCl प्लस H2O, तो ये दोनों भी कंपाउंड हो गए, यानी कि दो कंपाउंड्स एक दूसरे को डिस्प्लेस कर ले रहे जगहों पे। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन मिल गया जाके ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन्स और एक ऑक्सीजन मिल गए, वेरस क्लोरीन जाके Na के साथ मिक्स हो गया। तो इस टाइप के रिएक्शन को हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लेके हमारे पास क्या एग्जाम्पल दिया गया है हमारी रीडर में, उसको भी हम एक खुद देख लेंगे। ओके, now if you want to know the like double displacement reaction, first you have to write like aim to check the chemical double displacement reaction in apparatus। ये actually activity number 9 हमारे रीडर में रहेगा। for apparatus we need few things like हमको चाहिए ये PbNO3, इसको हम बोलेंगे लेड नाइट्रेट। इसका नाम क्या रहेगा, as you are learning first time तो आपको शायद याद रखना होगा, you have to just remember PbNO2 taken thrice NO like thrice plus 2Ki, this is nothing but पोटेशियम आयोडीन रहता है ये, ठीक है। उसके बाद ये बन जाएगा लाइक PbI, यानी लेड आयोडीन होता है ये, और ये होता है 2KNO यानी पोटेशियम नाइट्रेट रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक कंपाउंड था, ये भी एक कंपाउंड है, ये लोग एक दूसरे से डिस्प्लेस हो गए। इसके मैं नाम अभी लिखा देता हूँ, लुक एट दी बोर्ड केयरफुली, LEAD लेड, NITRATE नाइट्रेट हो गया, ये पोटेशियम, ओके, आयोडीन, ये पोटेशियम आयोडीन है, ये हमारे पास आपको तो पता ही होना चाहिए लेड आयोडीन हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एलिमेंट्स जाके यानी दो अलग अलग कंपाउंड्स एक दूसरे में डिस्प्लेस हो गए, इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसका जो डेफिनेशन होता है वो मैं आपको बोलता हूँ स्लोली, एक काम करता हूँ। आई थिंक आई एम गोइंग टू प्लेस हियर, अपार्ट फ्रॉम प्लेसिंग आई एम गोइंग टू रीड ऑल्सो। ओके, लिसन केयरफुली एंड लुक एट दी स्क्रीन, इधर देखना है, ठीक है। This reaction is double displacement reaction if two reactant exchange their constituent chemically and forms two product, then the reaction is called as double displacement reaction। तो अगर आपको what is double displacement reaction अगर एग्जाम में पूछता है तो फर्स्ट यू नीड टू राइट दिस केमिकल इक्वेशन। आफ्टर राइटिंग द केमिकल इक्वेशन यू हैव टू राइट व्हाट आई सेड, जो अभी मैं बोला था आपको यहाँ स्क्रीन पे भी लगे हुआ था वो आपको करना क्या है, लिख लेना है। ये एग्जाम्पल साथ साथ जो भी मैं एक थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ जगह दे रहा हूँ, ये आप कंप्लीट लिख लीजिए। लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडीन, लेड आयोडीन और पोटेशियम नाइट्रेट, ये हो गया है। तो ये लिख लेने के बाद यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूले को यहाँ पे आई थिंक ये 3 लिखना है मेरे को, 2KNO3 PbI, ओके, PbI2 लिखना है यहाँ पे मैं, PbI2 लाइक PbNO2 है, देखिए ऑल द स्टूडेंट हियर वी हैव 2, आफ्टर दैट वी हैव 3 विद अस, ओके, एंड 2KI, मेक श्योर अच्छे से लिखिए, ये लिख के वो जो अभी मैं बोला था वो लिख लीजिए। नाउ दिस इज डन। नाउ इन वी हैव वन मोर टाइप ऑफ रिएक्शन लाइक ऑक्सीडेशन। In oxidation reaction we have 2 types of reaction with us like rancidity, and after rancidity we have one more type of reaction with us like corrosion। like in heat reaction we have 2 type of reaction with us like heat में भी हमने
टू टाइप के रिएक्शंस पढ़े थे, क्या थे जी वो याद है, भूल गए। अब बीच थोड़ी देर पहले नेक्स्ट प्रीवियस सेशन में हम पढ़े थे, एक एक्सोथर्मिक था, ठीक है, और एक एंडोथर्मिक था। तो वैसे ही आपको ऑक्सीडेशन में भी टू टाइप के रिएक्शन है। हीट रिएक्शन में क्या हो रहा था, या तो हीट ऑब्जर्व हो रही थी या तो हीट लिबरेट हो रही थी, यानी कि हीट खींच ले रहा था या फिर छोड़ दे रहा था। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, तो कहीं पे भी ऑक्सीजन का ऐड होना, OXYGEN, ऑक्सीजन एडिंग, कहीं पे भी जहाँ पे ऑक्सीजन एडिंग होती उस टाइप के रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पहले जो है कोरिजन है, और एक कोरिजन के बारे में समझा देता हूँ। हमारा जो यानी कि घर में हम आयरन को रखते हैं तो रस्टिंग ऑफ आयरन आ जाता, यानी आयरन को कम्प्लीटली रस्ट आ जाता, तो वो जो रस्टिंग ऑफ आयरन रहता वो आपको कोरिजन रहता। नेक्स्ट थिंग, हमारा जो टैप्स रहते हैं उसको ग्रीन कलर की कॉपर लेयर आ जाती, तो वो भी हमको क्या रहता, कोरिजन रहता। नेक्स्ट है आपके पास रैंसिडिटी। रैंसिडिटी इज़ नथिंग बट हमारे जो फूड मटेरियल्स है, चाहे वो फ्रूट रहने दीजिए या वेजिटेबल रहने दीजिए, अगर हम उसको रखेंगे तो वो हल्लू 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 ऑक्सीडाइज होना शुरू करते, होने के बाद वो थोड़े दिनों के बाद गलते सड़ते और पूरे स्पॉइल सड़ के ख़राब हो जाते। उस टाइप के रिएक्शन को आप रैंसिडिटी कहते हैं। उसका और एक एग्जांपल ये भी है, जब हम एप्पल को कट करके रख देंगे, जो एप्पल का जो यूजुअली लाइट येलो लेयर रहता, यानी वाइट भी कह सकते हैं आप उसको, वो वाइट लेयर जो है हल्लू हल्लू ब्राउन लेयर में कन्वर्ट हो जाता अगर आप एप्पल को काट के रखें, तो भी एक रैंसिडिटी का टाइप है। तो ये रैंसिडिटी, कोरिजन और ये केमिकल रिएक्शंस को लेके आपके रीडर में बहुत कुछ दिए हुआ है, बट एज यू आर इन 9th क्लास, मैं जितना आपको समझाया वो समझिए, वो लिख लीजिए, उसको याद रख लीजिए, आपके लिए बहुत काफ़ी है ये। क्योंकि आई थिंक इन फर्दर क्लासेस यू माइट ये केमिकल रिएक्शंस के तो एक छोटी सी चीज़ के जैसा हो जाता है आपको, और बहुत बड़े टॉपिक्स आपको आने वाले क्लासेस में आपको पढ़ना होता है। तो ये हो गई हमारी आज का लेसन, साथ ही साथ हमारा आज का सेशन। तो हमने पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था, देखिए ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। पहले तो हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ा था, जो अभी पढ़ाया इससे पहले के वाले पार्ट यानी कि हिस्से में पढ़ाया था। उससे पहले हम बहुत सारा चीज़ें पढ़े थे, जैसा कि मोल किसे कहते हैं वो भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। एटॉमिक मास हमने पढ़ा है, ठीक है। एटॉमिक मास के साथ साथ हमने एटॉमिक वेट पढ़ा है हमने, ठीक है। एटॉमिक वेट के साथ साथ हमने WEIGHT, उसके साथ साथ हमने लाइक वैलेंसी किसे कहते हैं, वैलेंसी के बारे में हमने कम अक्रॉस हुआ। आयंस में टू टाइप के आयंस रहते हैं, एक कैटायंस रहता है, एक एनायंस रहता। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने उससे पहले सेशन में एटम्स किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और साथ ही साथ स्टार्टिंग जो लेसन का शुरू हुआ था वो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से शुरू हुआ था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ा था। उसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमने पढ़ा था, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और बहुत सारे। इसके बाद हमारे पास डेल्टॉन्स एटॉमिक थ्योरी हमने पढ़ा था, डेल्टॉन की एटॉमिक थ्योरी। फिर डेल्टॉन की एटॉमिक थ्योरी के बाद उसके बाद कंपाउंड्स किसको कहते हैं, मॉलिक्यूल्स, एटम। बहुत ये लेसन में हमने पढ़ा है। ख्याल रहे 2-3 चीज़ों का। पहली चीज़, आप मेरे लेक्चर्स 1 से 2 खुद सुनिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप ना सुन रहे हैं, हो सकता कुछ लेक्चर्स में आपको प्रॉब्लम हो, तो फर्स्ट चीज़ ये है। सेकंड चीज़, जब भी आप मेरा लेक्चर सुन रही, हमारी तेलंगाना की 9th क्लास की आप रीडर सामने लेके बैठ के सुनिए। थर्ड चीज़, जो भी मैं बीचों में बोल रहा हूँ वो नोट्स में लिखना कंपलसरी है, ठीक है। फोर्थ चीज़, जो आपने लिख लिया है उसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, बाई हार्ट कीजिए। नीड नॉट टू मल्टीप्लाई और बगफ, आप समझ के याद रख सकते, बहुत आसान है। तो हमारा ये लेसन पूरा कंप्लीट हुआ। सो वी विल गोइंग टू कंटिन्यू नेक्स्ट लेसन। हम नेक्स्ट लेसन हम कंटिन्यू करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज सेशन एंड टुडेज क्लास। आई एम सैयद राशिद, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टीचर and lecturer in this organization. You are watching our YouTube channel name as Ahle Bayt High School and Junior College. Have a great time, maintain notes, take care, thank you.